Welcome to MR Defense previous year series. Today we are going to solve the NDA 2 2021 question paper. Let's begin. And this is beneficial for all defense examination, whether it's CDS, FCAT or CAPF. So let us start the series. Question 1 of the day is Belt and Road Initiative is a foreign policy initiative of Belt and Road Initiative is a foreign policy of which country basically? Options are China is the right answer basically. Option B है USA, Canada and Japan. अभी let's know more about the China's Belt and Road Initiative. It is basically one belt and one road initiative, where one belt refers to the roadways, transportation, road connectivity, and one road stands for the waterway connectivity. So one belt and one road initiative OBOR policy is launched in 2013 by Xi Jinping. ठीक है, 2013 में its main purpose is to revive the old Silk Route, to revive the old Silk economic belt connecting more than 70 countries. CPEC is also part of this China-Pakistan economic corridor, which passes through POK in this manner. Here CPEC, and it's connected with Gwadar Port of Pakistan. So this is CPEC. It is also part of One Belt and Road Initiative. Moving on to next question is, which one of the following is the longest parallel of latitude? Now this question we had also done in our previous video. Like उसमें पूछा गया था कि जो longest line है अर्थ पे वो कौन सी है, ठीक है. सो द आंसर इज इक्वेटर, डी. आप देख सकते हैं जो लाइन ऑफ पैरेलल्स होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर 0 डिग्री, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, northern hemisphere and southern hemisphere. Here is Arctic Circle 66.5 degree north, Antarctic Circle 66.5 degree south. Moving on to next question, which one of the following is not part of fundamental rights? Option A, right to education. Option B, right to establish educational institution by minorities. Option C, right to confer with titles. Option D, right against untouchability. So while solving this question you should highlight this not. पूछा गया not a fundamental right. Now it is a fundamental right. 21A, right to education. Now you have to let me know in comment box by which constitutional amendment this particular article is added into the Indian Constitution. Next is right to establish educational institution by minorities. That is your article 30. Right to be conferred with title, बिल्कुल it is the wrong one, because article 18 states that article 18 prohibits from handling titles, prohibition of टाइटल्स, ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बेसिकली. तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया. राइट अगेंस्ट टचेबिलिटी इट इज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो इसका जो सही आंसर है, द राइट आंसर हियर इज सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? वी नो दैट देयर आर 5 types of writ given in the constitution under the article 32 of the constitution. The writs are you can see here clearly. टाइप्स ऑफ रिट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी एंड क्यू वारंटो. सो आप ऑप्शन में इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, डी सेवरेबिलिटी नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज वी मूव फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड? मतलब ये पूछ रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, जो आप साइड में देख रहे होंगे, ये लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर नीचे से ऊपर जाने पे, अर्थ सरफेस से अपवर्ड जाने पे किस सीक्वेंस में होंगी? सीक्वेंस आपका होना चाहिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आपका लास्ट में कौन सा आता है, एक्सोस्फियर आता है. तो ये सीक्वेंस आपको किस में देखना है, ऑप्शंस में देखना है. तो हियर आर योर ऑप्शन. ऑप्शन 1 स्टेट्स ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीसोस्फियर नहीं, ठीक है. ट्रोपोस्फियर आप इस ईजिली इस में आप देख सकते हैं. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. सो बी इज़ द राइट आंसर. आप इसको मैप इसको देख सकते हैं एनाटॉमी को, ठीक है. जितने भी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं ये आपकी स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करती हैं. ओजोन लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द CDS एंड NDA एज वेल, वेयर इज इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? सो इट इज़ इन द एटमॉस्फेयर. जो अपर स्ट्रेटोस्फियर होता है इसमें आपका ओजोन लेयर होता है, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड आ जाता है आपका मीजोस्फियर, ठीक. फिर आता है आपका थर्मोस्फियर, जहाँ पे आपको आइनोस्फियर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइंस होते हैं एंड दैट इज़ बेनिफिट फॉर कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आपका आइनोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर आपका बेनिफिट करता है, ठीक है. जितने भी आपकी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं दे टेक पार्ट इन द ट्रोपोस्फियर. सो द राइट आंसर इज बी इज़ द राइट आंसर हियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर? पेरेंटल मटेरियल, जी हाँ पेरेंटल मटेरियल होना चाहिए. टोपोग्राफी इज बेसिकली आपका जो एरिया रहता है, ठीक है.
इट्स जोग्राफिकल एरिया, टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म आपका वहाँ पे कैसा है, लैंड फॉर्म आपका कैसा है वहाँ पे, लैंड फॉर्म, ठीक है। क्लाइमेट, बिल्कुल सही। ह्यूमन हैबिटेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन का ह्यूमन हैबिटेशन से कोई मतलब नहीं होता है, ह्यूमन हैबिटेशन डोंट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो हियर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड्स इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड। तो झारखंड में कौन सी लोकेट नहीं है, पहली है झरिया, बिल्कुल सही। आप इसमें देखो मैप में आप देख सकते हो, पहली है झरिया। अब आप लोकेट कर सकते हैं झरिया, ये है आपका, ये आपका झरिया कोल फील्ड रहा। रामगढ़ कोल फील्ड ये भी आपका कहाँ पे है, रामगढ़ कोल फील्ड ये रहा आपका। देवगढ़ कोल फील्ड ये भी आपका किस में है, झारखंड में ही आता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है उमरिया, ये आपका आता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मरियम जो कोल फील्ड है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये सोन के पास है, सोन रिवर के पास। सोन रिवर का जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से होता है, अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक के नियर होता है। एंड सोन रिवर इज़ द ओनली पेनिनसुलर रिवर दैट मीट्स विथ रिवर गंगा, ठीक है। सोन रिवर इज़ द ओनली पेनिनसुलर रिवर दैट मीट्स विथ रिवर गंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्बरेशन इज़ अ फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ। रिवर्बरेशन का मतलब पूछा गया, तो बेसिकली ये आपका इस तरीके का होता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द, आप मूवीज़ हॉल देखने जाते होंगे, मूवी हॉल में देखने जाते होंगे, असेंबली हॉल होते हैं, ठीक है, असेंबली हॉल्स होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, ऊपर से थोड़ा सा कर्व किया जाता है, सो दैट क्या किया जाए, इको प्रोड्यूस हो और वो रिवर्बरेट होकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होकर आपको क्या किया जाए, उसका जो आवाज़ है वो आपको सही से समझ में आए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, रिवर्बरेशन इज अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बी इज़ द राइट आंसर हियर। आप एक बार देख सकते हैं, ऑप्शंस भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का है वैसे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करने हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी, ही शैल रिसीव सच remuneration as president may determine. Option C is he shall be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. Option D, he shall give advice to the government of India on all legal matters. आपके नीचे वाले तीनों सही हैं, ओनली नहीं होता है, ठीक है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन द पार्लियामेंट एज वेल, ठीक है। पार्लियामेंट के सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू ऑडियंस वहाँ पर है, बट वहाँ पे वोट नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंक्शन इज नॉट, ये जब भी आप सॉल्व करो एग्जाम में नॉट देख लेना, हाईलाइट कर लेना, पेपर में आप हाईलाइट कर लेना कि नॉट पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि फंक्शन क्या है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी इज टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन्स। ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन द पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है गुड सोसाइटी, ठीक है, अच्छी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है वो ये सब होता है एक्सेप्ट दिस, ए, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखो सेट, ये आपका एफआर के बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट, गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स, डिफरेंट ऑर्गन, ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा पंचायत राज हो गया और म्यूनसिपालिटी, ये सब क्या पावर डिवीजन ही है सभी का, ठीक है। जस्ट सोसाइटी के लिए आपका क्या होता है, डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, डीपीएसपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच। ग्रीनविच आपका कितने पे है, ग्रीनविच जो मीन टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है 0 डिग्री से। ये आपकी कहाँ पे, लंदन के पास है ग्रीनविच, ठीक है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है वहाँ से आपका टाइम कैलकुलेट किया जाता है। आपको जैसे पता होगा ये अर्थ है, मान लेते हैं, तो इस तरीके से जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं किसके लिए, टाइम के लिए, टाइम जानने के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए। और जो आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं, दैट इज़ योर पैरेलल लाइन्स, लाइक ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, ये आपकी इक्वेटर होगी, ये आप इनको क्या बोला जाता है, लाइन्स ऑफ पैरेलल, ठीक है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, सेम नीचे होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर यूज्ड टू नो अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आपके टाइम जोन के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा इसमें मैक्सिमम टाइम जोन पे रखता है। जैसे हमें इंडिया का पता है कि इंडिया का कितना है, +530 है, ठीक है। नेपाल का रहता है +545, श्रीलंका का जो है सेम विद जैसा इंडिया का है 530। भूटान का मैक्सिमम है वो कितना है, +6 चलता है। मतलब अगर लंदन में सुबह के अगर 12 बजे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे +6 आवर्स चलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे शाम के 6 बजे होंगे, ठीक है, 6 घंटे। मैक्सिमम कौन सा है, डी इज़ द राइट आंसर। आप इसमें देख भी सकते हैं 5 हाफ 5 ये, ठीक है। बर्मा का दिया गया 6 हाफ, थाईलैंड का 7, चाइना का है +8, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से +8 चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बेस्ट डिफाइन कौन करता है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी मिक्स्ड सिस्टम, ऑप्शन डी जनरल टिकट। तो नीचे वाले दोनों नहीं है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में सिर्फ कुछ जो हायर पोस्ट होती हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपका क्या चलता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। बाकी जो इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पीपल विल कास्ट देयर वोट, कास्ट द वोट, फिर एक लोग क्या होगा, मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव जो बन जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जस्टिसिएबल राइट। नॉन जस्टिसिएबल राइट, देखो आपको पता है कि जस्टिसिएबल राइट्स क्या होते हैं आपके? जस्टिसिएबल राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल राइट्स। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? नॉन जस्टिसिएबल पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, ऑप्शन बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ऑप्शन सी है राइट ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट लाइफ एंड लिवलीहुड। तो ये आपका सॉरी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आपका आर्टिकल 21 आता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट आता है, ये 20 में आता है। या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका आता है किसमें? एक्सप्लॉयटेशन 23-24। ठीक है, बेसिकली 23-24। राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड ये आपका आता है DPSP में, दैट इज़ योर आर्टिकल 39 में ये आता है। ठीक है, एडिक्वेट लिवलीहुड आर्टिकल 39 में आता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी जस्टिसिएबल है, जिसमें आपका क्या होता है? प्रोटेक्टेड है, गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसमें आप एक रिट के थ्रू क्या कर सकते हैं? इस पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेटर लेक इन इंडिया। क्रेटर लेक बेसिकली क्या होती हैं? जो भी आपकी उल्कापिंडिया जो क्रेटर्स होते हैं, ठीक है, मेटेओराइट्स होते हैं, मेटियोर्स होते हैं, इनसे जो बनी हुई लेक होती है उनको बोलते हैं क्या? क्रेटर लेक। तो ऑप्शन है लोनार लेक, सांबार लेक, ऑप्शन सी है चिल्का लेक, ऑप्शन डी है वेम्बनाथ लेक। तो आप ये देखो पिक्चर में जो लेक देख रहे हैं, दैट इज़ योर लोनार लेक। इट इज़ इंडियाज़ ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया। ठीक है, जो कि कहाँ पे आपकी? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। बट अब हम जान लें सांबर लेक। सांबर लेक क्या है? सॉल्टिएस्ट लेक है राजस्थान में। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हाईएस्ट सेलाइन लेक है आपकी कौन सी? चिल्का, ये आपकी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। वेम्बनाड लेक इज़ इन केरला। कहाँ पे है वेम्बनाड लेक आपकी? एक मिनट, केरला में। ठीक है, चिल्का लेक इज़ इन उड़ीसा, सांबर लेक जो आपकी सॉल्टिएस्ट लेक है राजस्थान में है, एंड चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में, लोनार लेक इन महाराष्ट्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये भी देखो रिपीटेड है, लास्ट क्लास में भी पूछा गया था लिथोस्फीयर के बारे में। इस क्लास में भी, मतलब लास्ट पेपर जो हुआ था, मतलब जो हमने किया था सॉल्व NDA 1 2021 का, उसमें भी ये सवाल था ऐसे ही। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट एवरीवन दैट दे शुड एटलीस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर द UPSC। जैसे आपका NDA हो गया, CDS हो गया, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लिथोस्फीयर में बेसिकली आप क्या होता है, आप जैसे इसमें देखोगे, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इस पिक्चर, लिथोस्फीयर बेसिकली कंप्राइजेज होता है क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल का। ठीक है, इस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। पहले होता है क्रस्ट होता है अप टू द हाइट ऑफ 1 to 100 किलोमीटर, फिर उसके बाद मेंटल आता है, फिर उसके बाद आउटर कोर रहता है, जो कि आउटर कोर आपकी क्या होती है? लिक्विड की बनी होती है। फिर इनर कोर होती है जो आपकी क्या है? एक सॉलिडिफाइड है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आ जाएगा क्या? क्रस्ट एंड अपर मेंटल। सी इज़ द राइट आंसर। लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है? क्रस्ट एंड अपर मेंटल का हिस्सा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, बिल्कुल सही देता है। इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इस पावर भी स्पेसिफाई करता है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बिल्कुल सही ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट स्पेसिफाई द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। देखो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा? नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर नहीं है, ये सभी फीचर हैं ऊपर वाले, ये नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी नहीं है। जबकि क्या होता है कि आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात की गई, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम अदर ऑर्गन्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम अदर ऑर्गन्स की बात की गई है। तो आपका यही क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सुप्रीमेसी के बारे में बात नहीं की गई, यही फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें एक साइड आपको दी गई है, एक साइड आपको दिया गया है लिस्ट 1 में डैम, दूसरे साइड आपको लिस्ट 2 दी गई है जिसमें दिया गया है स्टेट। तो सबसे पहले जो डैम दिया गया है, एक साइड देख लेते, हीराकुंड है, पंचेट है, कोसी है, उकाई है। ठीक है, स्टेट आपके दिए गए गुजरात, बिहार, उड़ीसा एंड अभी आपको मान के चलो एक तो पता होगा, एक या दो पता हो गए। जैसे क्या? हीराकुंड डैम आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। ए का 3 हो गया, ठीक है। हीराकुंड डैम इज़ ऑन महानदी रिवर।
ठीक है, महानदी पर है, ये भी याद रखना है, ये कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, महानदी पर है। ठीक है, पंचेत डैम आपका किस पे, दामोदर रिवर पे, झारखंड में। बी का क्या हो गया, 4 हो गया इस तरीके से, दामोदर रिवर पे है पंचेत डैम। कोसी आपको पता है बिहार में ही होगी, सी का 2 हो गया। डी का क्या हो गया, उकाई जो है सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कहाँ का, गुजरात का है, तापी रिवर पे है। कहाँ का है, तापी रिवर पे है। रिवर कौन सी है, उकाई पे, उकाई मल्टी डैम किस पर है, तापी रिवर पर है। कोसी इटसेल्फ एक रिवर है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। अब ऑप्शंस में आप देख लीजिए 3, 4, 2, 1 पहले ही मिल गया, लो ए वाला सही है। तो आप इसमें ईजिली हटा भी सकते हैं, जैसे आपको नहीं पता ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, 3 और 1 इसमें दिया गया, 1 और 3 दिया, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Constitution 35 Amendment Act of 1974 is related to which one of the following states, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो आपने सिटीजनशिप से रिलेटेड एक वीडियो है चैनल पे, वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि 35 से क्या हुआ था, सिक्किम को बनाया गया था एसोसिएट स्टेट बनाया गया था इंडिया का एसोसिएट स्टेट, वेयर एज 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को इंडिया का फुल स्टेट बना दिया गया था, फुल स्टेटहुड मिल गई थी। ठीक है, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ब्रिटिश डिमार्केट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड एज दामिनेको फॉर सेटलिंग द संथल्स। देखो संथल्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आज भी कहाँ पे मिलती है, झारखंड के एरियाज़ में। झारखंड में भी पर्टिकुलरली कहाँ, राजमहल हिल्स में रहते थे ये लोग, राजमहल हिल्स जो आपकी कहाँ पे झारखंड में ही है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 810, 1793, 1885 या 1832। वो था 1832, आपका डी सही होगा। दामिनेको का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्प्लिट ऑफ हिल्स होता है। दामिनेको इज़ अ पर्शियन वर्ड, दामिन एक मतलब होता है पर्शियन वर्ड है एक ये। ठीक है, और संथल्स के बारे में और जानते हैं तो संथल रिवॉल्ट एक हुआ था, संथल रिवॉल्ट हुआ था, ये आपका पूछ लिया जाता है। रिवॉल्ट हुआ था 1855 में। इसमें जो लीडर थे वो थे कौन कौन, सिद्धू एंड कन्नू। ठीक है, ये 2 लीडर थे संथल रिवॉल्ट के, तो ये रिवॉल्ट भी पूछ लिया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट करेक्ट पूछा गया, ये याद रखना, नॉट करेक्ट। तो पहला है बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइंड बाय वॉल्टर जी रोसेन, बिल्कुल सही है, इन्होंने ही कॉइन किया था। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाज कॉइंड बाय नॉर्मन मेयर्स इन 1988, ये भी सही है। द रीजन्स हैविंग रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये भी सही है। तो आपका जो नॉट करेक्ट है वो आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि मोर देन 100 बायो हॉटस्पॉट्स नहीं है, अराउंड 35 है बेसिकली। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में पूरे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को किसने बोला था, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बोला था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डी इज द राइट आंसर। इन्होंने बोला था प्रीएम्बल ऑफ द, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था प्रीएम्बल को बोला था क्या, नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मणिपुर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है झारखंड। तो आप ये मैप में देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं गुजरात से पास हो रहा है, राजस्थान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, मध्य प्रदेश से भी पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से। इस तरीके से आपका गुजरात ऑप्शन कट हो चुका है अभी तक। झारखंड से भी पास हो रही है, तो झारखंड भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा नॉट पास, ठीक है, डज नॉट पास, कहाँ से पास नहीं होती है ये पूछा गया। वेस्ट बंगाल से भी पास हो रही है, तो ये भी आपका हो गया। अभी जो सही ऑप्शन है वो आपका आंसर नंबर ए हो गया। लेकिन आपको ये स्टेट याद रखनी है, सीक्वेंस में भी याद रखनी है। सबसे पहला स्टेट है फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, सेवंथ इज त्रिपुरा, एट्थ इज मिजोरम। These are the 8 Indian states from where the tropic of cancer passes through. Now next question है, which of the following pairs of crop and or product is or are correctly matched? इस तरीके के आपको इन्फोग्राफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आप इनमें डिटेल में क्रॉप्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया रावी के बारे में, रावी को सोन किया जाता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर में, हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल से जून में। क्रॉप्स के नेम जो भी हैं, एंड रावी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोल्ड वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, कम पानी चाहिए होता है जितनी भी रावी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, फूड क्रॉप रागी बिल्कुल सही है। कैश क्रॉप जूट इज़ अ कैश क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही होगा, तीनों ही सही है। फूड क्रॉप रागी है, ठीक है। रागी बेसिकली इसको बोला जाता है फिंगर मिलेट्स, इंग्लिश में बोला जाता है फिंगर मिलेट्स, ठीक है, याद रखना है ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉल्ड, करंट बोला जाता है, बिप्स बोला जाता है, टाइड्स बोला जाता है, या सुनामी बोला जाता है। बेसिकली उसको क्या बोला जाता है, टाइड्स बोला जाता है, ठीक है। टाइड्स क्या होते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर लेवल अलॉन्ग द कोस्ट आर कॉल्ड टाइड्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ओशियन डजंट चेंज बट मूव्स इन अ पैटर्न। बेसिकली क्या होता है, जब मून और सन का जब पुल लगता है इस पे अर्थ पे, तो टाइड होते हैं, और एक दिन में क्या होते हैं आपके 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होते हैं। ओवरऑल 4 टाइड्स होते हैं, ठीक है, 2 हाई 2 लो टाइड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधीज एंटी अनटचेबिलिटी, सॉरी एक बार आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधीज एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन इज और आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट दिया गया द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड फॉर दिस पर्पज, बिल्कुल सही। हरिजन ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड इन 1932, ये ईयर भी याद रखना है, ये क्वेश्चन CDS में आ चुका है। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड इन विच ईयर, ठीक है, ये क्वेश्चन CDS में आया है आज से 2 या 3 साल पहले, 2 साल पहले आया था। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंपेन वॉज टू रूट आउट अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही। सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ द हिंदू शास्त्र, ये गलत है, यहाँ तक सही था। हिंदू शास्त्र में आपको बेसिकली क्या किया गया, ऋग्वेद में दिया गया है, ऋग्वेद में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग वर्गों का डिवीज़न किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है क्या, ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ये गलत आपका है। इट डिड एंजॉय सैंक्शन फ्रॉम द हिंदू शास्त्र में इसके बारे में दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इश्तिहार, इश्तिहार बेसिकली क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं इश्तिहार, नोटिफिकेशंस। आज भी देखो NDA का नोटिफिकेशन आएगा, CDS का इश्तिहार आएगा। ठीक है, इश्तिहार इज़ उर्दू वर्ड आई थिंक, शायद। ठीक है, कमेंट में बताओ अगर आपको पता है इश्तिहार कैसा वर्ड है, हिंदी है या उर्दू में है। ठीक है, पहला है करेक्ट पूछा गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में। पहला है दे ग्लोरीफाइड मुस्लिम रूल इन इंडिया, दे ग्लोरीफाइड, ये नहीं है, दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर, दे ग्लोरीफाइड द मैसेज ऑफ इस्लाम, दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ये देखो ये नहीं है। उन्होंने देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज समथिंग जहाँ पे इंडियंस एंड मुस्लिम्स फाइट टुगेदर, सो दे ग्लोरीफाइड द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है द फाउंडर्स ऑफ परमहंस मंडली फाउंडेड इन महाराष्ट्र बिलीव्ड, सॉरी एन नहीं है, ये बी है, बिलीव्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है सोशल डिस्टेंसिंग अलॉन्ग कास्ट लाइन्स, नहीं जी इसमें बिलीव नहीं करते थे। ग्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम नहीं, ये मॉडर्न थे, ट्रांसफॉर्मेशन थे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के थे। फॉरबिडिंग विडो रीमैरिज, ये भी नहीं। वन गॉड एंड इन ब्रेकिंग कास्ट रूल्स, ये एकदम सही है, ये इनका बिलीव था, थॉट प्रोसेस था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। पर अब जान लेते हैं परमहंस मंडली के फाउंडर्स के बारे में। परमहंस मंडली वॉज अ सीक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप एस्टेब्लिश्ड इन 1849। इसके फाउंडर भी जान लेते हैं। फाउंडर थे बेसिकली दुर्गाराम मेहता जी और दबोबा पांडुरंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दबोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी ने परमहंस मंडली का फॉर्मेशन किया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फ्लाइंग शटल लूम। फ्लाइंग शटल लूम क्या होती थी, कुछ इस तरीके की मशीन है ये। ठीक है, अभी आपको आंसर भी मिल गया होगा। ठीक है, आंसर भी क्या है, जॉन केज फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल बेसिकली क्या होता है, कपड़ा बुनने के लिए, जो ना क्लॉथिंग के लिए। इसने क्या किया था, जैसे पहले बुनकरी जो होती थी ना, हैंडीक्राफ्ट, वो हाथों से होती थी, मशीन ने आके क्या किया, वर्क को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तेज स्पीड कर दिया। जॉन केज द राइट आंसर, सी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार पढ़ के जाना, सभी पढ़ सकते हो इसको, अभी वैसे चैनल पे होगा ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, देखो अगर प्रेसिपिटेशन बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर को अफेक्ट करेगा। इसमें पूछा क्या, डज नॉट अफेक्ट, ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कौन नहीं करता है। पहला है प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल करेगा। इवेपोरेशन का रेट भी करेगा, क्योंकि जितना इवेपोरेट होगा वही प्रेसिपिटेट भी होगा। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड सरफेस टू अलाउ वाटर टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड सिस्टम, ये भी होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का कोई सेंस नहीं होता है ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से लेने का। ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करेगा, कितने भी दूर, अभी आपके यहाँ पे देख लो सी से कितना दूर है, तब भी आपके यहाँ पे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है, जो भी विलेजेस एरिया में रह रहे थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए प्लीज़ फॉलो अस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।